already lost a lot of time. So we'll continue with the where we left yesterday. Ma'am, excuse me. Yes. Ma'am, yesterday I was not able to attend the class. So, ma'am, whatever is missed, ma'am, can we get the video of that? Yeah, the video would be available because it was recorded and the video Okay, should. ma'am. Actually, ma'am, due to some internet problem, I was unable to attend the class. Okay. So yesterday actually we just did some revision on accounts, and then we started looking at various ratios. So ratios are nothing but mathematical equations. So you can look at the video, and in case you don't understand, you can ask it in the class, no problem. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, anyways, I'd ask everybody to go through it because these are nothing, not something very technical. They are only mathematical equations. So I'd ask everybody to go through it once. So I hope everybody has done it. And You if you please have done give, it once, then it is ma'am, easy. can you please give some hint related to the ratios? So whatever you teach today, we can understand. No, they have no correlations. But Soumya, as you know, ratios are nothing but mathematical relation of one number to another. Yes, ma'am. So to look at the working of a company or to compare it with the other companies, you calculate some ratios or some you do some mathematical calculations. Okay, so we had seen that for a company, profitability is one parameter. To see how the company is working, profitability is one parameter. So you calculate some profitability ratio. Then how they are using their assets, how they are using their inventory. For that, you have the activity ratios. And today we are going to look at liquidity ratios. So we have been seeing to measure a company's performance at various parameters. Yes, ma'am. You can calculate these ratios. Okay, ma'am. Okay, so that is what we had done yesterday. So what about others? कल मैंने आप लोग को बोला था कि एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग ने सब रेशियोज देखे थे. मैंने ये भी बोला था कि हर चीज लिखते रहिए जिससे आपको याद रहती रहेगी, क्लियर होती जाएगी. Anyone, any questions, anything you want to share? पढ़ा नहीं पढ़ा, समझ आया नहीं समझ आया? मैम पढ़ा था मैम, समझ आ गया है मैम, क्योंकि बेसिकली ये फॉर्मूला पे डिपेंड है तो मैम इसलिए समझ आ गया था. हाँ, इसमें वही इसलिए मैंने बोला था एक बार अगर आप पढ़ लोगे सो यू विल रिमेम्बर इट फॉर अ लाइफ टाइम. कल Yes, क्लास में ma'am. पढ़ा और एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर. एनीवन एल्स? और टर्नओवर रेशियो बस रिवाइज करवा दीजिए मैम, वो थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूजन है. कौन से रेशियोस? मैम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो. क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो. ओके, आपका क्रेडिटर हुआ कौन पहले? मैम क्रेडिटर, मैम जो सप्लाईज दे रहे हैं हमको वही. करेक्ट, जो आपको सप्लाई दे रहा है वो आपका क्रेडिटर है. तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बेसिकली आपको बताएगा कि आप कितने दिन में क्रेडिटर का पैसा वापस कर पा रहे हो. ठीक है, और जो वेंडर्स आपके साथ जुड़ना चाह रहे होंगे दे विल लुक एट द क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो. तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ये है ना. ये आपके लिए भी मेजरमेंट है कि आप किस तरह से अपना क्रेडिटर मतलब कितने कैसे आप लोग अपना क्रेडिट पीरियड यूटिलाइज कर रहे हो. तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा देन इट शोज कि आप यू आर नॉट यूजिंग योर क्रेडिट पीरियड वेल. और अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो इट विल शो दैट योर creditors are not getting the money faster, so people will not like to associate with you. Okay, so cost of sales divided by average creditors. जो आपका बिल्स पेबल होगा ना, that is your creditors. So creditor turnover ratio also known as bill payable. तो जो आपको पैसा देना है, it's a liability we have seen.
जो भी आपको पैसा देना है, हाउ वेल यू आर एबल टू पे दैट. सो क्रेडिटर्स वो हैं जिनसे हम परचेस करते हैं, पर क्योंकि बिजनेस में क्रेडिट चलता है, वी डोंट नीड टू मेक द पेमेंट इमीडिएटली, वी हैव टू मेक द पेमेंट आफ्टर द एग्रीड पीरियड. तो कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड भी लेंगे तो उसमें भी एक क्रेडिट पीरियड होता है. सो दैट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट when you will make the payment. So similarly in business also you have a agreement between the seller and the buyer of raw material, that this is the amount of time I will allow you to make the payment. So credit turnover ratio is used to calculate how much time will it take for the seller to get the money back. तो उसके लिए हमें पहले creditor turnover ratio calculate करना है, which is cost of sales above average creditor. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में वो देखा भी था. सो नेट क्रेडिट परचेस अबाउट एवरेज अकाउंट पेबल. तो आपने कितना परचेस किया है और उसमें से कितना आपका अकाउंट बचा हुआ है पेबल करने, लाइक हाउ मच यू हैव टू पे बैक. एंड उससे ही हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड इन नंबर ऑफ डेज. सो यू जस्ट डिवाइड it by you divide 365 by 5, so it will give you 73 days. So that is a creditor turnover ratio. So यहाँ पे देखो creditor payment period के लिए you need to have a creditor turnover ratio. So this formula or this ratio is very useful for people who want to associate with your business. So this can also be used as a marketing point for your business. So for example, your creditor payout period is 45 days. So you can tell the creditor, see, we are making all the payment in 45 days and you will receive your money in 45 days. So that is what the creditor turnover ratio tells you. Now, is it clear, Prachi? Yes, ma'am. मैम एक बार कैश साइकिल समझा दीजिए. Cash conversion cycle. So cash conversion cycle. So for कोई भी चीज खरीदने के लिए आपको कैश चाहिए और कोई भी चीज आप बेचेंगे तो आपको कैश मिलेगा. तो कन्वर्जन साइकिल इज दैट. सो इफ यू लुक एट बिजनेस, बिजनेस क्या है? मान लो ट्रेडिंग बिजनेस है फॉर एग्जांपल. ट्रेडिंग बिजनेस में आपके पास पैसा है. व्हाट विल यू डू? यू विल गो एंड बाय योर मर्चेंडाइजेस फ्रॉम सम प्लेस. तो आपका कैश खर्च हो गया. अब आपको कैश कब मिलेगा? कैश मिलेगा जब आप ये सारा पूरा सामान बेच पाएंगे, राइट? Along with profit, you will be able to, if you are able to sell it at a higher price. तो आपको ये पैसा वापस मिलेगा only when you are able to sell the merchandise which you have bought. So cash conversion cycle is the time you take to convert your cash back into cash. So if you look at the definition, the cash conversion cycle is a cash flow calculation that attempts to measure the time taken by a company to convert its investment in inventory and other resources inputs into cash. तो इसका आपका दोनों पे असर पड़ेगा. आपका क्रेडिटर पेमेंट पीरियड पे भी असर पड़ेगा और डेटर कलेक्शन पीरियड का भी असर पड़ेगा. ये तो जितनी जल्दी आपको कैश मिलेगा उतनी जल्दी आप क्रेडिटर्स को पे कर पाओगे और जितनी जल्दी आप कलेक्ट कर पाओगे डेटर्स से तो आपका it will have a उतनी जल्दी आपका उतना ही छोटा आपका कैश साइकिल होगा. So basically any business starts with cash, uses that cash to buy raw material, manufacture goods and then recover the cash by selling it. Okay, so it is measured as number of days it will take the business to recover the money which they have invested in the business. मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, जो आपने अपने करंट
लाइबिलिटीज या करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया है वो आप कितनी जल्दी रिकवर कर पाते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सर्विस कंपनी का पैसा एक्चुअली ज्यादा अटका नहीं होता है क्योंकि दे सेल सर्विस एंड रिसीव कैश। मर्चेंडाइज कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इट बाइज इन्वेंट्री, सेल्स इन्वेंट्री एंड देन रिसीव कैश एंड पे फॉर द इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कैश कन्वर्जन will be buy raw material, make product, sell product and receive cash and pay for material and labor। तो इन तीनों में किसका कैश साइकिल सबसे बड़ा होगा? किसका सबसे बड़ा होगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल लेना है, फिर उसका उसके ऊपर काम करना है एंड देन यू हैव टू सेल इट। सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कैश साइकिल सबसे ज्यादा होता है। सर्विस कंपनी का सबसे छोटा होगा बिकॉज दे डोंट हैव टू डू मच, दे जस्ट नीड टू सेल सर्विस एंड रिकवर दैट मनी। So basically, to understand, cash cycle measures the time it takes the business to convert cash back into cash. Is it clear now, Shakti? Yes, ma'am. Clear हो गया। और it has a quick link to liquidity। तो जितना जल्दी आप कैश को वापस कैश में कन्वर्ट कर लेंगे उतना ही आपका लिक्विडिटी आपके पास ज्यादा होगी। Okay, now let us look at some other ratios, which is liquidity ratio. Now, what do you understand by liquidity? Liquidity क्या है? And liquidity is the कैश जल्दी conversion of जिसमें the conversion of convert asset हो into जाए। cash. Yeah. So liquidity measures the ease of conversion of asset into cash. Into cash. So if we say we are liquid, liquidity है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास Ma'am, कैश है, cash ज्यादा है। मेरे पास कैश है। Yes, और ma'am. अगर इफ आई से नहीं लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास एसेट्स नहीं है, मेरे पास एसेट्स है बट उनको कैश में कन्वर्ट करना बहुत इजी नहीं है। ओके, सो लिक्विडिटी रेशियो विल मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस टू कन्वर्ट इट एसेट्स इनटू कैश। तो आपके हिसाब से कौन से एसेट्स सबसे ज्यादा लिक्विड होंगे मैम गोल्ड। बिजनेस के लिए? अच्छा, करंट business के लिए। मैम लैंड। लैंड लिक्विड है। मैम करंट एसेट्स। चेक। Check, right? Inventory. Financial instruments are liquid. मैम Inventory. shares। Share investments. मैम इन्वेंट्री। Liquid, Yes, ma'am. correct. कंपनी के खुद के शेयर लिक्विड नहीं है क्योंकि कंपनी खुद के शेयर बेच देगी तो फिर Yes, प्रॉब्लम हो ma'am. जाएगा ना। मैम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज लिक्विड, राइट? तो आपकी करंट एसेट जहां तक जो भी है, करंट एसेट जितने ज्यादा होंगे उतनी लिक्विडिटी ज्यादा होगी। बट अगेन अगर करंट एसेट आपके ज्यादा होंगे तो अगेन इट विल अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो अगेन योर करंट एसेट्स हैव टू बी ऑप्टिमम। हाउएवर वी मेजर द लिक्विडिटी ऑफ अ कंपनी बाय लुकिंग एट द करंट एसेट्स। ओके, सो 3 मेजर लिक्विडिटी रेशियो हैं। So अगर if the company does not have enough liquidity, it will not be able to manage their short-term obligation effectively. तो liquidity के लिए हम दो चीजें देखते हैं, एक short term liability और short term asset. When will we say that we are adequately liquid? Current asset और current liability के एक सिनेरियो में कब हम बोल पाएंगे कि हमारी liquidity अच्छी है? When we have enough current So how will you know how whether you have enough or not? What is the measure? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के उसमें कैसे मेजर करेंगे कि हमारी लिक्विडिटी अच्छी है कि नहीं है? मैम अगर हम उसे इजीली कन्वर्ट कर लेंगे तब।
किसको? मैम current assets. करंट एसेट्स, राइट। तो कब हम बोलेंगे हमारी लिक्विडिटी अच्छी है? जब हमारे पास हमारा करंट एसेट इज इनफ टू टेक केयर ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमने क्या देखा? करंट लायबिलिटी वो है जो हमें थोड़े दिन में पे करनी है, वी हैव टू पे विद इन 1 ईयर। तो इफ वी हैव एडिक्वेट करंट एसेट्स टू पे इट, देन वी आर लिक्विड। ओके, सो लिक्विडिटी रेशियो देखने के लिए हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी देखते हैं। तो अगर हमें कुछ भी पे नहीं करना है, वी डोंट हैव मच करंट लायबिलिटी, तो हम लोग लिक्विड है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम है, बट करंट लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए व्हेन वी आर लुकिंग एट द लिक्विडिटी ऑफ अ कंपनी, वी लुक एट द करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स। So as we have seen, liquidity ratio measures the company's ability to meet short-term obligation. Short-term obligation को हम और क्या कह सकते हैं? Short term loan liabilities. Short-term liabilities और current liabilities. Current Short-term liabilities. obligation मतलब current liabilities. Current liabilities. तो इसमें हम दो रेशियोज निकालते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो। करंट रेशियो, as the name says, uses current liability and current asset. So current ratio is calculated by current assets divided by current liability. Okay, so if it is more than 1, you have enough cash to pay your current liability, or you have enough current assets to take care of your current liability. So current ratio calculates the cover that current assets have a current liability. The higher the better. Higher your current asset, better it is, because if it is more than 1, that means you have sufficient current assets to pay your current liabilities. So current ratio is a relationship between current assets and current liability. I hope आपको याद है current asset में क्या आएगा, current liability में क्या आएगा? Palak, can you give me example of 2 current liabilities and 2 current assets? Short term loan Short term loan, okay, and is a current liability, and okay, equity. 2. You have to give me 2 examples. I'm sorry, Equity, equity current liability है क्या? मैम डिविडेंड पेमेंट होगा तो नहीं, that is not example of your current liability, because dividend liability as such नहीं है. अगर if you don't have enough money, you can defer the payment of dividend. एक बिजनेस में क्या करंट लायबिलिटी हो सकती है? मैम बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है, जो शॉर्ट टर्म में आपको पे करना है. तो शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, जो आपने बोला, इफ यू हैव टू पे इट इन द कमिंग टाइम, और your bills payable are your current liability. Zubair, can you give me an example of 2 current assets? Current assets क्या होंगे आपके? कंपनी के लैपटॉप, कंपनी के लैपटॉप बेच के आप पेमेंट करेंगे? May I explain? कंपनी के लैपटॉप पहले तो करंट एसेट्स नहीं होंगे. वो कौन से एसेट्स हैं? कंपनी के लैपटॉप कौन से एसेट्स होंगे? Long term assets. फिक्स्ड एसेट। वो तो फिक्स एसेट्स है ना. आप अपना लैपटॉप ही बेच दोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो इसका मतलब आपकी कंपनी में लिक्विडिटी प्रॉब्लम है. अगर आप जिस दिन आपको अपनी कंपनी का लैपटॉप बेचना पड़ा करंट लायबिलिटी पे करने के लिए, मतलब आपकी कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, उसके पास करंट एसेट्स है ही नहीं, इसलिए वो फिक्स एसेट बेच के पैसा दे रहा है. करंट एसेट्स में क्या आएगा? एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ट्राई? कलश, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? मैम करंट एसेट्स में जैसे कि चेक्स वगैरह हो गए और फिनिश गुड्स, ओके, इन्वेंट्री या फिनिश गुड्स आपके करंट एसेट्स हो गए, क्योंकि आप उसको बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो.
तो current asset is which will be converted to cash very fast without the need to without the need to sell your fixed asset. Fixed asset बेच दोगे आप तो आपका business आगे कैसे चलेगा? तो current assets are something which can be converted to cash quickly without affecting the business. So ये भी एक अगर अभी भी confusion है fixed asset और current asset में, this is also one way to understand. Current assets are assets which can be converted to cash quickly without affecting the business. पर अगर आप फिक्स एसेट को बेचेंगे तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट योर बिजनेस. सो जैसे सुबह ने बोला लैपटॉप, कंपनी का लैपटॉप एसेट है कंपनी का, बट वो फिक्स एसेट है. तो कंपनी ने अगर लैपटॉप खरीदा है फॉर एग्जांपल, सो मे बी दे आर अ ट्रैवल एजेंसी, एक ट्रैवल एजेंसी है, उसकी करंट एसेट्स क्या हो सकते हैं? लैपटॉप तो उसका फिक्स एसेट है. फिक्स एसेट बेचने लगे आप तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा. तो इसके करंट एसेट्स क्या हो सकते हैं? एक ट्रैवल कंपनी है, उसके करंट एसेट्स क्या हो सकते हैं? मैम कार एंड ऑल दैट. कार? No, car is not a current asset. Car is a fixed asset. Super suitable business. Which will selling it will not affect the business. Any asset जिसको वो बेचेगा तो उसका एक्चुअल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या it can be converted to cash without मैम affecting चेक the हो business. सकते हैं और बिल्स हो सकते हैं मैम, जो उसको चेक्स हो मिले. सकते हैं और बिल्स रिसीवेबल Yes, हो ma'am. सकते हैं ना. अगर मान लीजिए आपने कोई चेक किसी का टूर बुक किया है, वो पैसा आया नहीं आपके पास, तो वो आपका करंट एसेट हो गया. वो पैसा आएगा तो आप बाकी अपना करंट लायबिलिटी पे कर पाओगे. ओके, सो ओके, सो दिस इज गिविंग मी एन इनसाइट कि आपको एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितना समझ में आया है. मतलब नहीं समझ में आया है. अगर द वे इफ जुबैर सेज दैट अ लैपटॉप इज अ करंट एसेट, दैट मींस अकाउंटिंग का आपको समझ नहीं आया प्रॉपर. यस मैम यस मीनाक्षी. मैम अकाउंट, मैम सौम्या, सौम्या, मैम yes, सौम्या. मैम अकाउंट रिसीवेबल भी मैम ये करंट एसेट होगा? करेक्ट, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है ना. यस मैम. ना अकाउंट रिसीवेबल क्या है कि आपने कोई सर्विस बेच दी है, बिजनेस में क्रेडिट चलता है तो तुरंत आपको पैसा नहीं मिलेगा. यस मैम. जब जैसे ही आपका मान लीजिए 45 डेज का क्रेडिट पीरियड है, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो पैसा आ गया. तो जैसे मैंने आपको, सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू वेरियस एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट. तो मैन्युफैक्चरिंग का तो सबको पता है, बट अगर Yes, आपकी सर्विस इंडस्ट्री भी है, तो आप फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी है, तो आपने किसी Yes, का टिकट बुक तो कर दिया, अब वो पैसा तुरंत आया नहीं, 15 दिन बाद आया, तो Yes, वो ma'am. आपकी करंट एसेट हुआ, ओके मैम. आपका करंट एसेट. ओके मैम. So current asset basically means assets which can be converted to cash without affecting the business. Anything if you are trying to convert into cash and it is affecting the business, अगर आपको जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, घर बार बेचना पड़ गया, तो घर बार बेचना पड़ गया मतलब आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत खराब है, बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन खराब है, क्योंकि फिक्स एसेट्स should not idly be converted to cash. Only अगर उनको चेंज करना है या फिर आपका बिजनेस बंद होना है तो अलग बात है, बट फिक्स एसेट्स आपके फिक्स रहते हैं, मतलब सालों साल चलते रहते हैं, और करंट एसेट्स आपके करंट लायबिलिटीज को पे करते रहते हैं. ठीक है, तो करंट रेशियो वही दिखाता है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं टू मीट योर करंट लायबिलिटी. So the current ratio is a liquidity and efficiency ratio Ma'am, that measures. Yeah, जी, बताइए. मैम जो लोग एडवांस पेमेंट करते हैं क्या वो मिला? हमारे, यस मैम, हाँ, जो हम एडवांस वो भी पेमेंट, एसेट है आपका. हाँ करंट, वो करंट एसेट ही होगा ना. अब आपने एडवांस पेमेंट करके रखा है तो किस चीज के लिए करके रखा है? किस चीज के लिए करके रखा है? सो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज कहीं से मंगानी थी फॉर एग्जाम्पल, तो आपने पेमेंट कर दिया, जब तक वो चीज आई नहीं तब तक वो आपका एडवांस पेमेंट रहा है. द मोमेंट यू रिसीव इट दैट बिकम्स योर एसेट ना. सो फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी कोई खरीदनी है, राइट, मशीनरी कोई खरीदनी है, तो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, जब तक मशीनरी आपके पास नहीं आई वो आपका करंट एसेट रहा. द मोमेंट मशीनरी कम्स टू यू इट बिकम्स योर फिक्स्ड एसेट. यस मैम. So
So current ratio is a liquidity and efficiency ratio that measure a firm's ability to pay off its short-term liabilities with its current assets. So short-term liabilities क्या है? हमारी current liabilities है. Current, current वो बिजली वाला current नहीं है. Current मतलब प्रिवेलिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एग्जाम, बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो वी हैव टू रीड करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स मतलब हो क्या रहा है, Going on. going on, what is going on. So that is what it is. So short term liabilities are your current liabilities or liabilities which you have to pay in the near future. So it is important measure of liquidity because short term liabilities are due within the next year. This means that a company has a limited amount of time in order to raise the fund to pay the liabilities. So basically it means जो current liability है वो मुझे अभी पे करना है, उसके लिए मेरे पास I should have enough money to pay. So अगर मेरे current assets हैं, जैसे आपने बोला चेक होता है current asset, cash होता है current asset, bills receivable होता है current asset. तो अगर if I'm able to receive it, I will be able to pay it. So my liquidity is good. पर अगर मेरे पास current assets नहीं है, तो obviously I will have to struggle to get that money. So current ratio is a measure of liquidity. How much current assets I have to meet my current liabilities. So you have, investment भी किसी ने बोला investment. हाँ, investment भी आपके current assets हो सकते हैं. So current assets like cash, cash equivalent, and marketable securities can be easily converted into cash in the short term. This means that companies with larger amount of current assets will be able to pay off current liabilities more easily when they become due without having to sell off long-term revenue generating assets. So this I was giving you example. अगर किसी business को अपने fixed asset बेचने पड़ते हैं, that means there is a problem in liquidity because these are your revenue generating asset. So अगर for example I will come back to our famous case study of a shirt manufacturing unit. तो उसके current assets क्या होंगे? Shirt manufacturing unit के current assets क्या होंगे और fixed assets क्या होंगे? Current assets are finished goods, inventory. Finished goods, correct. Inventory, machinery, plant. हाँ, तो example दो ना, ये सब theoretical नहीं, example दो. Can you apply it to a company which manufactures shirts? जो shirt manufacturing company है, उसके current assets क्या होंगे और उसके fixed assets क्या होंगे? मैम जो थ्रेड्स वगैरह होंगे और जो शर्ट वगैरह होंगी और so, जो कपड़ा उसके पास पड़ा है वो भी उसका करंट एसेट है, क्योंकि अगर इतनी प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेगा? कपड़ा ही बेच देगा, शर्ट बनाए बिना ही कपड़ा बेच देगा, राइट? कपड़ा भी उसका करंट एसेट है, बनी हुई शर्ट्स उसके पास रखी है वो भी उसका करंट एसेट्स है, जो उसने शर्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी है वो भी उसका करंट एसेट है, क्योंकि उसका पैसा आ जाएगा. तो ये सारे उसके करंट एसेट्स है. बट उसकी जो सिलाई मशीन है, उसकी जो कैंची है, वो उसके फिक्स एसेट्स है. So if you have to sell his machinery and his scissors and all that, that means the company is not doing well. So current assets are something which will help you to pay current liabilities. Okay. So your business is in a good condition if you have enough current assets to pay your current liabilities. So again, अभी I think थोड़ा सा clarity शायद आई हो. Current liabilities, current assets. Yes, ma'am. Will be able to pay off current liabilities more easily when they become due without having to sell off long-term revenue generating assets. Now, liquidity ratio में एक और होता है quick ratio. Quick मतलब कितना जल्दी. तो इसमें से it's the same thing. It is a variation of your current ratio. So current ratio हमने क्या देखा? It takes the entire current asset and divides it by current liability. Quick ratio में हम क्या लेते हैं? Quick ratio में हम वही asset लेते हैं जो तुरंत cash में convert हो जाएगा. So for example, if you have to calculate a quick ratio and for 30 days, अब हमारा bill payable जो है 45 days 45th day पे आएगा. So obviously we will not take it. We will only take the assets which can be quickly converted into cash. So जो भी receivable हमारे 30 days के अंदर आने होंगे, we will take that. But
बाकी we will not take. So anything which will takes time to get converted, we will not take into quick ratio. इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं. तो अगर आपको याद हो, इफ यू रीड इंग्लिश, तो आपको पता है कि एसिड टेस्ट इज अ वेरी टफ टेस्ट. द एसिड टेस्ट, तो एसिड टेस्ट हम करते हैं टू एट वेरी टफ टाइम्स. तो एसिड टेस्ट आपको और अच्छे से बता देगा कि इस बिजनेस में कितनी लिक्विडिटी है, कैसे ये अपना पेमेंट कर पाए. सो क्विक रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ अ कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. The quick ratio measures a company ability to meet its short-term obligation with its most liquid asset. So, जितना जल्दी वो उसको कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे, the better it is. So it calculates the cover that easily liquefying assets have on current liability, higher the better. So जितना आपका quick ratio क्या बता रहे हैं कि आपके पास कौन से assets है, कौन से ऐसे assets है which will be converted to cash immediately. तो इसमें हम इन्वेंट्रीज निकाल देंगे क्योंकि इन्वेंट्रीज को कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो हमने कपड़ा भी लिया था, धागा भी लिया था, कैंची भी ली थी, एंड वी हैव टेकन द मशीन आल्सो. बट क्विक रेशियो में व्हाट वी विल डू, जो हमारा बिल्स पेबल है, जो हमने शर्ट्स बेच दी हैं या जो हमारी रेडीमेड शर्ट्स हैं, वो वी विल टेक, बट वी विल नॉट टेक द cloth which is lying with us, so raw material which is lying with us. So this is the difference. So quick ratio or current ratio are quite similar, for the exception कि हम current assets से inventory निकाल दें. Okay? So current assets minus inventory divided by current liabilities. तो अगर आपको current ratio निकालना हो तो हम पूरा current asset लेते हैं, पर क्विक रेशियो के लिए हम इन्वेंट्री निकाल देते हैं, बिकॉज इन्वेंट्री माइट टेक सम टाइम टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश. दिस इज अ क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो. तो दोनों समझ में आ गया, बहुत इजी है, कोई खास टेक्निकल नहीं है. करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज योर करंट रेशियो. करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज योर क्विक रेशियो. So quick ratio shows the extent of cash and other current assets that are readily converted into cash in comparison to short-term obligation of an organization. इसमें से we take out inventory and deferred tax credit because it will take some time for us to receive it. So inventory and deferred tax credit are excluded from calculation since conversion of assets into cash may take considerable time. So a quick ratio of 0.5 would suggest that the company will be able to settle half of its current liability instantaneously. Baki ke liye you'll have to wait for the liquidity of the asset. Now cash ratio और भी narrow कर देता है. Cash ratio converts the liquidity with regards to cash. क्योंकि कैश तो बहुत लिक्विड है, जितना कैश आपके बैंक में पड़ा है वो तो आप तुरंत ही निकाल के दे सकते हो, उससे चेक भी इशू कर सकते हो. तो कैश रेशियो इज नैरोअर देन योर even your asset test ratio because it takes only cash and cash equivalents as your current assets. So same formula है, cash भी हमारा current asset है, plus marketable securities भी है, plus inventory भी है, plus account receivable भी है. So it is a even a narrower formula to know your liquidity. It only counts cash and marketable securities. कैश और कैश इक्विवेलेंट जो कि तुरंत कन्वर्ट हो जाए. So cash ratio indicates whether the company has enough cash balance to cover the current liabilities. Indicator of firm's value where the company is about to shut down. तो कितना कैश है. So it tells you how much current asset could quickly be turned into cash. So तीनों ratios अगर आप देखो तो denominator is current liability.
और धीरे धीरे आपका जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है। तो हमने करंट रेशियो देखा, करंट रेशियो में वी आर टेकिंग ऑल करंट लाइबिलिटीज में, इट मे बी रिसीवेबल, इट मे बी इन्वेंट्री, it would be cash and cash equivalent. So we are taking the entire range of current assets. Quick ratio, yeah, asset ratio, asset test ratio में what are we doing? We are subtracting or we are removing the inventory, because inventory might take some time to be converted to cash. So we are removing inventory in from our current assets. So current assets minus inventory divided by current liability is your asset test ratio. And the third one is even narrower, where we are taking only the cash and cash equivalent for calculating the ratio or the liquidity, right? मैम यहाँ पे So cash ratio, मार्केटेबल सिक्योरिटीज से मैम क्या यहाँ पे इक्विटी का मतलब है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर कोई इन्वेस्टमेंट है आपके पास या फिनिश गुड्स है आपके पास, जो कि आप बेच के तुरंत कैश ले सकते हो, वो है मार्केटेबल सिक्योरिटी। ओके, मार्केटेबल सिक्योरिटी है जो कि आप जाके तुरंत बेच के कैश ले सकते हो, उसको हम उतना ही हम ले रहे हैं उसमें, राइट। जो जैसे इसमें बिल्स रिसीवेबल भी है, तो बिल्स रिसीवेबल तो आपके क्रेडिट पीरियड के बाद ही आएगा ना। बिल्स रिसीवेबल यू माइट हैव सम टाइम टू रिसीव, है ना, पर योर मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो भी आप तुरंत बेच के कैश निकाल सकते हो, ये आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। जैसे किसी ने बोला था ना शेयर्स, ऑब्वियसली आपके शेयर नहीं, ये आपकी किसी आपके इन्वेस्टमेंट्स, जो आपके इन्वेस्टमेंट है जो आप बेच के, एफडी है, यू नो, या और कोई इन्वेस्टमेंट है जिसको आप बेच के तुरंत कैश कन्वर्ट कर सकते हो। So that is what cash ratio measures. However, it is not a very good ratios, क्योंकि बिजनेस में अगर आप किसी बिजनेसमैन से बात करोगे ना, तो आप वो यही बोलता है कि अगर इतना कैश में रखूंगा तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा, क्योंकि रादर देन कीपिंग देयर कैश इन द बैंक अकाउंट, बिजनेसमैन यू वांट टू यूज देयर कैश, उसी कैश से वो रॉ मटेरियल खरीद के एक और वर्किंग कैपिटल ला सकते हैं। तो यू नो, मोस्ट इट्स नॉट दैट इफ द कैश रेशियो इज वेरी हाई द कंपनी इज डूइंग वेरी गुड. Having a lot of a huge amount of cash in bank account is also unprofitable for any business. So cash ratio is not you know, probably a very good measure of looking at the working of a company. So it's not realistic for a company to maintain excessive level of cash. That would mean poor asset utilization for a company. Poor asset utilization मतलब कि I'm not using the money. तो हमने देखा, ये हम देखते आ रहे हैं कि money lying idle. बैंक अकाउंट में अगर देखो तो मनी इज लाइंग आइडल, इट डजंट जनरेट मच रिटर्न. फॉर जनरेटिंग रिटर्न यू हैव टू पुट योर मनी टू यूज. सो आजकल एडवर्टाइजमेंट भी बहुत आता है ना, यू नो, लेट योर मनी वर्क व्हेन यू आर स्लीपिंग. सो इफ यू हैव मनी यू हैव टू लेट योर मनी वर्क फॉर यू. अगर आपने पैसा सिर्फ बैंक में उठा के डाल दिया, दैट मींस पुअर एसेट यूटिलाइजेशन फॉर अ कंपनी. This money could be returned to shareholders or used elsewhere to generate higher return. So that's what I was telling you कि cash businessmen क्या करते हैं, वो cash को constantly use करते रहते हैं to generate more money, and this is seldom used in financial reporting. So financial reporting में इसका बहुत बड़ा, you know, बहुत बड़ा contribution नहीं है, because it is just looking at, it's very narrow, it's only looking at the cash a business has. So these are the measure of liquidity. Then you can look at operating cash flow. As the name suggests, it means cash flow from operations divided by current liability. So it illustrates how many times the cash flow will cover the company's owes in short term. तो ये जितना you know, जितना ज्यादा होगा, will be better, because that means that enough money is coming from operations to pay the current liabilities. So operating cash flow could be acceptable at slightly lower amounts, because other short-term liability assets could come into play to cover the company's debt. So basically, ये तो कोई भी देखेगा like कितना cash मेरे पास रोज आ रहा है, so it measures that. So operating cash flow divided by current liabilities. So these are some liquidity ratio. Just to give you a recap, liquidity ratio measures the company's ability
to pay its short term obligation. शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मतलब जो पैसा हमको शॉर्ट टर्म में देना है उसको हम करंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं। तो हम करंट लाइबिलिटीज कैसे पे कर पाएंगे? जब हमारे पास इनफ करंट एसेट्स होंगे, राइट? तो योर लिक्विडिटी मेजर्स द रिलेशन ऑफ करंट एसेट्स विथ करंट लाइबिलिटीज। तो हो सकता है कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हो, लाइक कैश मेरे पास 1 लाख रुपया है। Will you able to say that I have a good liquidity? You will not know until you look at my current liability. अभी 1 लाख रुपया जो मेरे अकाउंट में पड़ा है, या अच्छा है या खराब है, you will only know after knowing my current liabilities. तो अगर मेरी current liabilities 70,000 की है, so I am well liquid. But अगर मेरी current liability 1,50,000 की है, I don't have enough liquidity. So इसीलिए we calculate a ratio because absolute number will not tell you the correct position. So, liquidity ratio tells how much money do I have to pay my current liabilities. If it is covering my current liabilities, very good, I'm liquid. If it is not covering, that means there is a problem. ठीक है, समझ में आया everyone? Yes, ma'am. Yes. शालिनी, okay. शुभम, कल आप लॉगिन करके फिर चले गए थे, फिर आपने बाद में लॉगिन नहीं किया था। मैम भीड़ बहुत है घर पे, किसी तरह क्लास कर ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आज के बाद खाली हो जाएगा। अच्छा, हाँ now let us look at solvency ratio. Solvent क्या है? Solvent is a company which is able to pay all its debt. अगर मेरे पास I do not have enough money to pay my debt, I am insolvent. So it focuses on the funding structure of the company used to determine long-term financial stability. So I hope you can see the difference between liquidity ratio and solvency ratio. Basically, both of them measure the same, but liquidity ratio is for short term, your solvency ratio is for the longer term because it takes long-term liabilities into consideration. So liquidity ratio takes short-term liabilities, solvency ratio takes long-term liabilities. However, there is a problem, insolvency ratio, because अब जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, राइट, जो हमारा पैसा लॉन्ग टर्म में है, उसमें अगर वी हैव इनफ मनी इन इक्विटी कैपिटल देन द कंपनी वुड बी सॉल्वेंट, और अगर डेट में है ज्यादा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट कई बार होता है ना कंपनी, आई एम सॉरी, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है मैम? मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी? Solvency means the ability to be able to pay my debts, my obligation. तो कंपनी के लिए solvency would mean if they are able to pay the debt they have, the debt capital they have generated, जो उनको जो उन्होंने उधार लिया है, they're able to return it, then that is solvency. मैम हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? अभी I will come to that. I'll come to that. तो हमारा जो है, अगर हमारे पास इक्विटी ज्यादा है और डेट कम है, व्हाट डू यू थिंक वो शुड बी द सॉल्वेंसी ऑफ दिस कंपनी? अच्छी होगी कि खराब होगी? मेरे पास इक्विटी बहुत है, डेट कम है, मैम अच्छी होगी। अच्छी होगी क्योंकि मुझे मैम पैसा अच्छी नहीं, कम वापस मैम अच्छी नहीं होगी क्योंकि जो 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 हमने दिया है वो तो हमें मिलेगा ही, लेकिन इक्विटी में पक्का नहीं है ना कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। करेक्ट, बट शेयर होल्डर्स को तो ये हमेशा ही ये पॉसिबिलिटी रहती है ना, पर कम से कम, और शेयर होल्डर्स वापस आके पूछ भी नहीं सकते कि मेरा पैसा वापस करो। दे हैड पार्टिसिपेटेड इन द बिजनेस, इफ द बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल, द शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी राइट टू कम एंड आस्क फॉर द मनी बैक। बट डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिनको इशू किए हैं आपने, उनको तो वो तो आके पूछेंगे। तो अगर मेरे पास इक्विटी कैपिटल ज्यादा है और डेट कैपिटल कम है, सो आई एम मोर सॉल्वेंट, क्योंकि इक्विटी आई डोंट बॉदर बिकॉज दे आर पार्टनर्स इन माय बिजनेस, डेट तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, राइट? अगर उल्टा है तो ऑब्वियसली माय कंपनी हैज अ प्रॉब्लम बिकॉज आई माइट नॉट बी एबल टू रिटर्न द मनी व्हिच आई हैव बोरोड। और इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? अब जैसे हमने देखा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हु हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेट एंड इक्विटी। सो फॉर एग्जांपल प्रेफर्ड कैपिटल, प्रेफर्ड शेयर्स हमने देखा था। प्रेफर्ड शेयर्स में
रेगुलर डिविडेंड देना होता है, बट दीज पीपल डू नॉट हैव एनी राइट्स टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. अब उसको आप क्या लोगे? और दे हैव टू बी रिडीम्ड, दे हैव टू बी रिटर्न बैक. नाउ इसको आप किस तरह से लोगे? डेट लोगे या इक्विटी की तरह लोगे? फिर उसके बाद कई बार कंपनीज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी इशू करती हैं, राइट? तो इसमें थोड़ा सा इशू होता है टू कैलकुलेट इट. सो हाइब्रिड as a word means combination of one or more. So hybrid, जैसे आपने हाइब्रिड इसमें भी सुना होगा, ये हाइब्रिड टमाटर है ना? तो क्या क्या है, एक टमाटर को दूसरे के साथ उसका जेनेटिक रीइंजीनियरिंग करके उस तरह का टमाटर बनाते हैं. तो इट हैज अ कॉम्बिनेशन. या हाइब्रिड कार्स, hybrid means combination of more than one type of thing. So hybrid instruments are instruments which have some characteristic of debt and some characteristic of equity. For example, preference shares or convertible debentures. So calculation gets complicated when a company has hybrid instrument such as convertible debt and preferred shares. Treating hybrid instruments as debt or equity depends on the circumstances. If the preferred shares have a definite redemption date, then it can be treated as debt, else it can be treated as equity. If a convertible debt is more likely to be converted, then it can be treated as equity, else as a debt. So solvency ratio mein you would understand that we are taking long term capital into account, so this might be a problem. तो ये कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर सॉल्वेंसी रेशियोज है. डेट इक्विटी रेशियो, सो व्हाट वुड इट टेल यू? डेट इक्विटी क्या बताएगा आपको? मैम डेट और इक्विटी के बीच का रेशियो की करेक्ट. बताएगा. तो आपका कैपिटल जो हमने देखा, कैपिटल फॉर्म कैसे हुआ है? आपके पास ज्यादा डेट है या आपके पास ज्यादा इक्विटी है? सो जस्ट इट इज कैलकुलेटेड बाय taking debt as a numerator and equity as a denominator. Then total debt by EBITDA or net debt, or net debt by EBITDA. EBITDA, anybody remembers what is it? Yes, ma'am. Earning before interest, tax, depreciation, amortization. and amortization. So ये आपका profit है basically. Then debt to capital employed. So हमने देखा capital employed मतलब the money which has been used in the business. Now this money can be either in form of debt or in form of capital. So you calculate how much debt you have compared to the total capital employed. Then you have debt service coverage ratio. Coverage मतलब कि आप पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो debt आप कब पे कर पाएंगे? कब आप उधार वापस कर पाएंगे? Enough cash होगा. When you have enough assets. So debt service coverage ratio tries to find out whether you will be able to service your debt or not, or you will be able to repay your debt or not. अब अगर आप देखो तो डेट में एक important component या every time component is the interest coverage. Interest is the money or the rent you have to pay from people from whom you have borrowed this money. So interest coverage ratio basically tries to calculate whether you'll be able to pay the interest or not, or how far you can pay the interest. So solvency. So जैसे मैंने आपको बताया कि your liquidity ratio has to do more with your short-term liabilities, where solvency ratio has to do with long-term liabilities. So solvency will tell you how well positioned is the firm to meet its long-term liability. Now, अभिनव बताइए हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? व्हाट आर आवर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस? व्हाट आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज? land building, land buildings long term. No.
They are long term, but they are long term assets, not Yeah. liabilities. Zubair, you have Yes, to ma'am. study well because आपको मुझे लगता है अभी assets और liability का concept ही clear नहीं हुआ. Land building हमारा asset है, हमारी liability नहीं है. हमारी liability क्या है? लाइबिलिटी में फिर जैसे मैंने किसी बैंक से लोन लिया लॉन्ग टर्म हाँ. के लिए, मैम इक्विटी डेब्ट्स वगैरह हमारे जो है Very good. Yes, Abhinav. Equity, debt, long-term loan is your long-term long-term loan. liability. Yeah, correct. पेंशंस I'm sorry. मैम पेंशंस भी हो सकता है. Pension? पेंशन क्या बोल रही शालिनी आप? मैम मॉर्गेज डेप्ट भी हो सकता है. क्या चीज? मैम मॉर्गेज डेप्ट. Mortgage debt. हाँ. Anything which you have to pay. Tax. Yes, ma'am. Taxes owed and wages owed and mortgage debt. Ma'am, yes, sir. हाँ, correct. But taxes तो more will be current liability, no? Yes, ma'am. Taxes would be current liability. And ma'am, wages owed. Wages भी current liability होगी ना? Wages तो आपको pay करना पड़ेगा ना? Yes, ma'am. Wages you have to pay every month, so they are current Yes, liability. Okay. So, solvency shows how a company financed is well. Okay. So, anyways, if you look at the solvency of a company which has more equity is better, क्योंकि debt तो वापस करना है, ठीक है? So, that is what it calculates. So, if the debt to total asset ratio is lesser, the company is safer. क्योंकि इक्विटी वाले तो अपना पैसा वापस मांगने आएंगे नहीं, डेट वाले ही आएंगे, और जितना डेट कम है उतनी स्टेबल है कंपनी, क्योंकि इक्विटी एनीवेज यू डोंट हैव टू रिटर्न. डेट टू इक्विटी आल्सो will tell you अगर if it is a lower ratio, will tell you that the company is positioned well or the company is stable, because equity money is more. So equity debt will be the numerator, equity would be the denominator. तो denominator जितना बड़ा होगा उतना ही ये रेशियो कम होगा. तो जितनी आपकी इक्विटी ज्यादा होगी उतनी ये रेशियो कम होगा. एंड टेल यू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी. लोअर द रेशियो, मोर स्टेबल इज द कंपनी. So higher cushion, again potential creditor loss. And debt to total capital would take both debt and equity into account. Then coverage ratio. Coverage मतलब आप कैसे पे कर पाओगे. Coverage would be dependent on your earnings. तो अगर आपने कोई लोन लिया है उसका इंटरेस्ट आप तभी दे पाओगे ना जब आपके पास इनफ कैश आ रहा है. तो कवरेज रेशियो वुड बी कैलकुलेटेड बाय द अर्निंग. So EBIT plus interest coverage is EBIT, that means earning before tax and interest payment, divided by interest payment. तो कितना आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है. और फिक्स चार्ज कवर EBIT प्लस लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट प्लस लीज पेमेंट. सो ये जो है आपका अगेन ये आपका करंट लायबिलिटीज है, इंटरेस्ट पेमेंट और लीज पेमेंट, क्योंकि आपको इसको पे करना है. लीज क्या है? लीज हम देख चुके हैं पहले. लीज क्या है? व्हाट इज लीज? मैम कुछ टाइम के लिए कोई एसेट उधार. किसी से, हाँ, तो आपने कोई एसेट लिया है किसी से, है ना, उसका आपको रेंट देना है. सो लीज इज नथिंग बट रेंट. इंटरेस्ट और लीज दोनों रेंटल है. इंटरेस्ट मेरे को देना है फॉर द कैपिटल विच आई बोरोड, एंड लीज मुझको देना है फॉर द एसेट आई बोरोड. सो बोथ आर माय करंट लायबिलिटी. सो हाउ मच मनी हैव आई अर्नड टू पे दिस. अगर मेरा अर्निंग कम है तो ऑब्वियसली माय कवरेज इज लेस. ये मैंने आपको बताया था डेट इक्विटी रेशियो टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी. सो इट टेल्स यू डेट एज अ परसेंटेज. या मैम लीज पेमेंट का जो एंट्री होगा वो करंट लायबिलिटी में जो होगा. मैम लीज पेमेंट का जो एंट्री होगा बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी होगा. करेक्ट, क्योंकि वो आपको हर साल पे करना पड़ेगा ना. ओके मैम. So debt equity ratio measures the relationship of debt with equity. So it mentions debt as a percentage of equity.
So debt the company has taken as proportion of the equity invested. तो डेट इक्विटी रेशियो जितना ज्यादा है उतना ज्यादा रिस्क है. तो हमने देखा ना, जितना इक्विटी, जो इक्विटी आपका डिनोमिनेटर है, जितना बड़ा आपका डिनोमिनेटर होगा उतना कम ये रेशियो होगा. उतना, इसका मतलब क्या है कि आपके पास इक्विटी कैपिटल ज्यादा है. इक्विटी कैपिटल को रिटर्न करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसलिए दैट कंपनी इज स्टेबल. बट अगर आपका डेट कैपिटल ज्यादा है, the debtors might ask for you to give the money back, तो आपकी स्टेबिलिटी कम हो. Now total debt to EBITDA. So total debt minus cash divided by EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization. So this is a very significant ratio for lenders. तो आप क्या कितना पहले से डेट है और आपका अर्निंग कितना है, whether you will be able to pay interest on the debt you are taking. So higher the debt to EBITDA ratio, higher is the debt. जितना ज्यादा डेट होगी आपका न्यूमरेटर तो डेट है ना, तो जितना ज्यादा डेट होगा उतना बड़ा ये रेशियो होगा, और जितना ज्यादा EBITDA होगा उतना कम ये रेशियो होगा. So that would mean that the company is making enough money to pay the debt. मैम Yeah. मैम जो इसमें कैश माइनस की गई है ना मैम, वो मैम अर्निंग की है कैश या क्या है मैम? नहीं, मैम जो कैश, फॉर्मूला में, हाँ ये कैश, अर्निंग की कैश नहीं है ना, अर्निंग तो यहाँ पे ये कैश जो आपकी करंट एसेट है, क्योंकि ये तो आपके पास है ओके ना मैम, कैश, यस मैम. तो ये आपके पास अवेलेबल है, ये आप कभी भी यूज करके इसको पे कर सकते हो, इसलिए. So your total debt to EBITDA ratio signifies is used to estimate level of bank borrowing possible. बैंक्स भी ये देखते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी है और आपकी डेट कितनी है. अगर ये रेशियो बहुत हाई है तो द बैंक माइट रिफ्यूज टू गिव यू अ लोन, बिकॉज आप कैसे भर पाओगे अगर आपकी अर्निंग कम है और आपकी डेट बहुत ज्यादा है, तो आप इंटरेस्ट और डेट रिपेमेंट कैसे कर पाओगे. सो दिस इज ऑल्सो अ रेशियो विच इज सीन बाय द बैंक बिफोर लेंडिंग आउट मनी. So used to estimate level of bank borrowing possible, frequently used in acquisition scenario to estimate the debt that can be raised based on post acquisition financials. तो अगर डेट बहुत ज्यादा होगी तो people might not want to acquire, क्योंकि वो उनको भी बाद में पे करना पड़ेगा. Okay, so you can have a lot of debt. It can be bonds, bank loans, notes, non-interest bearing debts could be trade payable, accrued expenses. So basically जब आप किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो तो you have to look ना कि what is the amount of money which has to be paid back. Okay, so this is also seen at the time of acquisition. Sorry, 1 minute. So this ratio is helpful in management decision and can be used by a company interested in investing in a takeover bid. Besides, the ratio is also helpful for potential buyer in estimating the profitability of the company without the aggressive spending on the current manager. Now, जो आपका टोटल डेट है, does it affect your current liabilities in some way? जो आपका डेट है, does it affect your current liability in some way? Anyone?
अगर डेट ज्यादा होगा तो करंट लायबिलिटी को किसी तरह से अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? लॉन्ग टर्म डेट है, विल इट अफेक्ट योर करंट लायबिलिटी इन सम वे? इट कैन, नो? डेट जितना ज्यादा डेट होगा उतना इंटरेस्ट पेमेंट आपका होगा। नो, इंटरेस्ट भी तो एक कॉस्ट है, तो जितना ज्यादा डेट होगा उतना आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा। सो दिस हैज टू बी सीन कि आपका डेट कितना है और आपकी अर्निंग कितना है। Now, debt to capital employed. Capital employed, as we have seen, the capital can be employed in two ways. It can be debt capital or equity capital. However, debt to capital employed takes total debt in relationship to the total capital. So, how measures how much of a firm's asset base is financed using debt. So, higher the ratio, higher is the intensity of debt. So, यहाँ पे total debt is the I hope all of you are writing, because यहाँ पे थोड़ा सा ये disadvantage है कि I can't see you, but I hope all of you are writing, because ऐसे ये आप सुन तो लोगे प्रवचन की तरह, but याद कुछ नहीं रहेगा. I hope all of you are writing it. Yes, ma'am. Formulas लिखते हैं. Yes, ma'am. लिखेंगे तो समझ में भी आएगा. So total debt is the numerator and equity plus debt is the denominator. It measures how much of a firm asset base is financed using debt. So higher debt to capital ratio, higher is the intensity of debt and higher would be the interest rate. मैम हाँ, मैम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग ये फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करने पड़ेंगे. नहीं ऐसे नहीं आएगा, but since it is in your course, it is better to learn, no? यस मैम. हो सकता, और मेरा हमेशा ये मानना रहा है, in professional courses you don't focus on exam, you focus on the usefulness of that learning, of usefulness of that knowledge. यस मैम. तो प्रोफेशनल कोर्सेज में यूजुअली एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि आप आराम से पास कर लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर आप जितना आप उस नॉलेज को यूज कर पाओगे द बेटर यू विल ग्रो इन योर प्रोफेशनल लाइफ. ओके, तो अभी ये कॉलेज वाला जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए. वी शुड ट्राई टू लर्न एज मच एज वी कैन, not to get very good marks. Obviously getting good marks is good, but the focus should be getting a good job and be able to do well in my job and to have a good career growth. Okay, तो maybe आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस ना पूछे जाए, मे बी आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस नहीं आए, बट व्हाट इज द हार्म इन लर्निंग व्हेन यू वांट टू गो इनटू दैट फील्ड, और ये कहीं ना कहीं आगे जाके आप यूज कर सकते हो. Now coming to interest coverage ratio. Coverage क्या है कि whether the company would be able to pay the interest or not. तो ये कैसे निकाल सकते हो आप? Earning before interest and tax divided by total interest expense. अगर ये बड़ा होगा, that means the company would be able to pay the interest very easily. Yes, मैम. बोलिए सौम्या, कौन है ये? 1 minute. Meenakshi, you're saying something. Hello, hello, hello. कौन बोल रहा था अभी? क्या हुआ? Somebody got disconnected. Meenakshi. Anyways, so interest ratio tells you how well the company, or how easy it is for the company to be able to pay the interest. Earning before income and sorry, yes मैम. yes, अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपकी वॉइस भी नहीं आ रही थी. मैम जो ऊपर फॉर्मूला है ना, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का, टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस नेट डेट. मैम इसको एक बार समझा दीजिए मैम. ओके मैम जो इसमें टोटल डेट दी हुई है मैम, और ये जो नेट डेट, इसमें क्या डिफरेंस है मैम? ओके, नाउ टोटल डेट मतलब कि आपको कितना पे करना है, राइट? सो दैट इज योर
टोटल डेट। Okay. अब नेट डेट क्या है? नेट डेट में कुछ हो सकता है आपके पास कुछ आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रिडीम हो गए हों, राइट? या कुछ कॉलेबल आपके पास कॉलेबल बॉन्ड्स हो, इफ यू रिमेम्बर कॉलेबल बॉन्ड्स हमने देखा था, Yes, ma'am. Yes, ma'am. या Yes, सो दैट ma'am. इज द नेट डेट। अब कितना बचा है पे करने को? Okay, ma'am. एंड देन वी वर लुकिंग एट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब आपका अर्निंग कितना है कि आप इंटरेस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे, राइट? सो EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस। जितना बड़ा ये नंबर है मतलब कि आपके पास उतना पैसा बचेगा आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट। सो अगर आपका इंटरेस्ट रेशियो कवरेज रेशियो बड़ा है, दैट मीन्स द रिस्क इज लेस, क्योंकि EBIT क्या है? EBIT इज द टोटल अर्निंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द कंपनी, और उसमें से मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो ये जितना कम होगा EBIT के रिलेशन में, उतना ये नंबर बड़ा होगा। दैट मीन्स अगर मेरी अर्निंग अच्छी है, आई विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट। सो EBIT, interest coverage ratio, measures how easy it is for the company to repay the interest. So higher the EBIT, easier for the company to pay the interest, and lesser the risk for the investor. अगर ये अर्निंग ही नहीं बची तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए उसको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम होगा कंपनी को इंटरेस्ट पे करने के लिए। और इंटरेस्ट पे करने का तो ऑब्लिगेशन है, वी हैव सीन दिस। डिविडेंड नहीं पे करेगा चलेगा, बट इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। इफ दिस इज लेस इन कंपैरिजन टू दिस, देन द कंपनी वुड बी इन ट्रबल। So debt service coverage ratio would be net profit plus depreciation and amortization plus interest divided by interest expense plus principal repayment obligation। तो अभी हम सिर्फ इंटरेस्ट देख रहे थे कि कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, पर उसका कोई रिपेमेंट ऑब्लिगेशन भी होगा ना, जैसे हमने अभी कॉलेबल बॉन्ड की बात की, तो कुछ हो सकता है उसमें से 2 साल के अंदर पेबल है या कुछ आने वाले टाइम में पेबल है। So that will tell whether the company will be able to repay that obligation or not. So debt service coverage ratio calculates the relationship between the profit of the company by the interest and the principal it has to repay. So this ratio should be greater than, obviously मेरी जो earning है, it should be greater than the amount I have to pay. ये तो logic एकदम, you know, एकदम लॉजिकल है, नथिंग टू डू विद अकाउंट्स, इट इज लॉजिकल कि जब मेरे पास इफ माय अर्निंग इज मोर देन माय एक्सपेंसेस, ओनली देन आई विल बी एबल टू डू ऑल द एक्सपेंसेस। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन क्या है? मेरा इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है ना। और ये क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन प्लस इंटरेस्ट, ये क्या है? ये मेरा इनकम है। मम्मी ये इनकम है, ये इनकम है। तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस। सो इफ माय ओनली व्हेन माय इनकम इज मोर देन माय एक्सपेंसेस विल आई बी एबल टू मेक दोज एक्सपेंसेस। ओके, सो दिस रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1 टू सर्विस एक्सपेंस इफेक्टिवली। तो जब मेरा नेट प्रॉफिट मेरे एक्सपेंस से ज्यादा होगा, ओनली देन आई विल बी एबल टू पे। So the debt service coverage ratio is a financial ratio that measures a company's ability to service its current debts by comparing its net operating income with its total debt service obligations. In other words, this ratio compares a company's available cash with its current interest, principal, and sinking fund obligations. The debt service coverage ratio is important to both creditors and investors, but creditors most often analyze it. So creditors कौन है? What my creditors? इन्वेस्टर्स। हाँ, बट किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं? किस
मैम जिन्हें इंटरेस्ट और पेमेंट रिटर्न करना ही करना है। हाँ, तो किस कैपेसिटी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है? मैम डेट। हाँ, तो इन्होंने डिबेंचर या बॉन्ड खरीदा है कंपनी का। दे आर नॉट इक्विटी शेयर होल्डर्स, यस मैम। राइट? हाँ, तो इक्विटी शेयर होल्डर ने तो वो रिस्क लिया है, उसको पैसा मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट करेगी, बट डेट वो रिस्क नहीं ले रहा, तो डेट को तो मुझे पेमेंट करना ही है। So they will look at my debt service coverage ratio to find out what is the possibility of them to get the interest and the principal. Also, जो investors हैं, मेरे future investors हैं, ये तो सबसे पहले देखेंगे ना कि existing investors को कैसे पैसा दिया जा रहा है. Okay? So it is important for both creditors and investors. Since this ratio measures a firm's ability to make its current debt obligation, current and future creditors are particularly interested in it. तो आपके in normal life also आप देखते हो ना, आपके कोई फ्रेंड्स होते हैं जिनको अगर वो कभी उधार मांगते हैं तो आप फट से देते हैं, क्योंकि पता है कि वो लोग हमेशा पैसा वापस कर देते हैं, राइट? और कुछ लोग होते हैं जिनको आप नहीं, आपको पता है हिस्ट्री से कि ये लोग पैसा नहीं देते, या फिर घर में प्रॉब्लम चल रही है, इसका पैसा नहीं आएगा, तो वैसे फ्रेंड्स को आप पैसा नहीं देना चाहते हो। तो बिजनेस में भी वही है, अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, आप उधार लिया हुआ पैसा लौटा रहे हो, people are ready to invest and people are ready to give you more money, but in case you are not able to do so, nobody will invest. So people look at your debt service coverage ratio before they invest in the company. Now कैसे आप solvency ratio improve कर सकते हो? तो हमने देखा है इसमें जो है जितना भी है इसमें डेट का खेल है, ज्यादातर जगह हम डेट ले रहे हैं एज न्यूमरेटर। नाउ न्यूमरेटर अगर आपको रिजल्ट छोटा करना है तो न्यूमरेटर को आपको छोटा करना पड़ेगा। सो यू हैव टू लुक एट वेज ऑफ रिड्यूसिंग योर डेट, एंड अनदर थिंग व्हिच इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन इज योर इनकम। तो दो तरीके हैं ना, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में। अगर आपको कम नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप न्यूमरेटर को कम करो या डिनोमिनेटर को बढ़ाओ। तो डिनोमिनेटर को बढ़ाने का क्या चीज है? इंप्रूव योर टॉप लाइन नंबर्स, मतलब अपना प्रॉफिट और सेल्स बढ़ाओ, या इंक्रीज ओनर्स इक्विटी, वो भी हमने देखा ना, इट इज अ डिनोमिनेटर। अगर आपकी ओनर्स इक्विटी बढ़ेगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो क्या होगा? आपका सारे रेशियो कम होते जाएंगे, बिकॉज ये सब डिनोमिनेटर में है। देन यू कैन ऑल्सो reduce it by reducing debt, क्योंकि debt आपका न्यूमरेटर में है। So you can reduce debt by selling assets, by reorganizing business structure. You can reinvest money and assets to repay your debt and avoid taking on new debt. So again, nothing very special. It talks about debt in relationship with either your equity or your asset or your income. तो अगर आप जितना अपना डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे उतना बेटर है, या न्यूमरेटर कम करिए। दो तरीके हैं आपके पास, न्यूमरेटर कम करके भी इसको कम किया जा सकता है और डिनोमिनेटर बढ़ा के भी इसको कम किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो योर सॉल्वेंसी विल बी बेटर द लेसर डेट यू हैव और द मोर प्रॉफिट यू मेक। तो अभी तक हम लोग 4 रेशियोज देख चुके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और कौन कौन से देखे हैं? कैन समबडी टेल मी कौन कौन से रेशियोज हमने देखे हैं? तो मैंने बता दिया, एक्टिविटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी। यस, या करेक्ट। सो यू हैव सीन प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, देन लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। एंड कौन कौन यूज करता है ये रेशियो? रेशियोज का फायदा क्या है? मैम पहला मैनेजर्स, ओके, और मैम इन्वेस्टर्स। और सबसे जरूरी है ना बैंक में ये सब, जो बैंक में लोन डिपार्टमेंट में होते हैं, राइट? वो सबसे पहले कंपनी से उनके बैलेंस शीट मंगा के ये सारे रेशियोज चेक करते हैं, because that gives them insight into the working of the company, राइट? तो अब बैंकर जाके कंपनी में तो रोज बैठेगा नहीं देखने के लिए ये। सो बैंकर्स जो है ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाते हैं टू डिसाइड वेदर द लोन शुड बी गिवन टू द कंपनी और नॉट।
So they are also important for bankers, and that's the reason we are reading it. तो अगर मान लीजिए आप रिटेल बैंकिंग की जगह कॉर्पोरेट बैंकिंग में जाना चाहते हैं या एमएसएमई में जाना चाहते हैं, या you have been placed there, this will make sense. This is how you will decide whether the loan should be given or not given. मैम रिटेल बैंकिंग में भी अगर लोन लेने जाओ मैम किसी अपने बिजनेस के लिए, तो मैम उसमें पहले बैलेंस शीट बनवाते हैं, फिर उसके बाद मतलब रिटेल बैंकिंग में इंडिविजुअल बैंकिंग की बात, रिटेल बैंकिंग में यस एमएसएमई अभी रिटेल बैंकिंग का ही पार्ट हो गया है. व्हेन आई सेड रिटेल बैंकिंग आई मेंट इंडिविजुअल बैंकिंग, बट यस राइट, एमएसएमई को भी ये बनाना पड़ता है टू टेक लोन. अगर आप नहीं बना रहे डॉक्यूमेंट्स तो लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द बैंक डज नॉट नो ना, अगर उनको किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को लोन देना होता है, they simply look at the bank account or they look at the salary slip. But business के लिए तो obviously they will have to look at the working of the business, because the probability of return of this money increases only when the company starts making profit. अगर लॉस हो रहा होगा कंपनी को तो कैसे पैसा वापस करेगी? So it is a, or again this is one saying which is very relevant to bankers. Prevention is better than cure. So bankers का ये prevention है. Cure तो है ही भाई, कोई अगर asset लिया हुआ है तो हमेशा cure है कि they can sell that asset and recover the money. But the bankers will work on the principle of prevention is better than cure. So ये सब prevention है कि company अगर अच्छा कर रही है only then I will give loan. If it is not doing well, we will not. Now valuation will tell you how is the company share price. So share हम लोग अभी market ऊपर जा रहा है तो everybody is interested in buying a share. But जो share price market में चल रहा है, is it worth investing? So valuation basically gives you an insight in the company share price. So compared to the company's profit or the company financial, what is the price of the shares? So आपके हिसाब से किस कंपनी का शेयर जो है हाईली प्राइस होना चाहिए? कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ना चाहिए या हाईली प्राइस होना चाहिए? Anyone? कोई नहीं. जो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो. हाँ, जब कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो तभी शेयर बढ़ेगा. ओके, क्योंकि तभी तो शेयर होल्डर्स को फायदा है. शेयर होल्डर ने शेयर क्यों खरीदा है? शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा कि हाँ मुझे एक तो डिविडेंड मिलेगा और दूसरी चीज है कि मेरी कंपनी का भाव बढ़ेगा. जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और शेयर का प्राइस कैसे बढ़ेगा? देयर आर मेनी अदर थिंग्स, बट द वे द कंपनी इज वर्किंग और द various financials of the company are also important for the increase of the share price. So that is the valuation ratio. तो आपका मार्केट में क्या शेयर प्राइस है, whether it is rightly priced to buy, are the valuation ratios. तो valuation ratio में we will take price of the share. So price क्या है? Market price of the share. So market price of the shares compared to book value of the share. Now, book value is the value of the share in the company's book. Market में कोई भी प्राइस हो, पर कंपनी में क्या प्राइस है? That is the book value. So price divided by book value is the price to book value ratio. Then price to earning ratio, कि प्राइस कितना है और कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी. So this is also known as PE ratio. So price to earning ratio. Then this thing EV to EBITDA. EV, 1 minute, let me recall what is EV here. Just give me a moment, मैं सोच रही हूँ EV क्या है, मेरे दिमाग से एकदम से slip हो गया. Anyways, I'll come back to it. So EBITDA तो मैंने बता दिया आपको, earning before income and tax and depreciation and amortization, and then price to earning to growth ratio. तो earning किस तरह से ग्रो कर रही है और किस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है. So these are the ratio. Now first ratio is EPS, earning per share.
अब अर्निंग पर शेयर आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, अर्निंग पर शेयर, पर का क्या मतलब होता है? हर के लिए ना, जो स्पीड हम पढ़ते थे पर किलोमीटर, तो मतलब 1 किलोमीटर में कितना चल रहा है ना? तो ईपीएस निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है? जस्ट पे अ लिटिल, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग क्या है? हम जो हम लोग अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। हाँ, कंपनी के टर्म्स में क्या होगा? मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट। और पर शेयर, अर्निंग मतलब प्रॉफिट कितना है, पर शेयर का क्या मतलब है? मैम हर एक शेयर पे हमें कितना पर प्रॉफिट शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? कैलकुलेट करेंगे। शेयर्स। करेक्ट। सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इज अर्निंग पर शेयर। तो एक शेयर के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है? या सो टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज अर्निंग पर शेयर। तो आप कैसे डिसाइड करोगे ये कंपनी अच्छी है या बुरी है? ईपीएस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? मैम इट वुड बी ग्रेटर। ज्यादा। So a company, if the company is making good profit, the EPS should be better. So EPS is earning per share, which can be calculated by total earnings divided by the number of shares. शेयर्स। Now इसमें दो चीजें हैं, एक बेसिक ईपीएस है और एक डाइल्यूटेड ईपीएस है। बेसिक तो ये हमने देख लिया, डाइल्यूटेड मतलब क्या है कि कुछ चीज हमने इसमें से हटा दी, राइट? अब हमने क्या हटा दिया इसमें से? So we have diluted EPS में weighted number of shares assuming conversion of convertible instruments. So हमने convertible instruments क्या है हमारे? Convertible instruments can be convertible preference shares, they can be convertible debentures. Okay, so क्या होगा जब convert होगा तो हमारा number of outstanding shares बढ़ेंगे ना? Number of shares हमारे बढ़ेंगे, right or wrong? यस मैम। अगर कंपनी के पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, जो हमने पहले देखा, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट जो है, तो वो जब कन्वर्ट होंगे तो हमारा इक्विटी बढ़ेगा ना। इक्विटी बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगा? हमारा डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ईपीएस पे क्या असर होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? मैम घटेगा। हाँ, जितना ये न्यूमरेटर बढ़ेगा उतना आपका ईपीएस घटेगा, राइट? सो बेसिक ईपीएस में हम सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं, बट डाइल्यूटेड में वी आल्सो टेक द शेयर द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच विल बी कन्वर्टेड टू इक्विटी। मैम बेसिक और डाइल्यूटेड में डिफरेंस क्या है मैम? बेसिक में बेसिक में आपने जो है जो आपकी मैम कन्वर्टेबल मतलब डिबेंचर्स हैं, मैम मतलब बेसिक और डाइल्यूटेड का मतलब क्या है मैम? इस स्टेट मैम इसमें इस कंटेक्स्ट में डाइल्यूटेड का मतलब अगर आप देखो, डाइल्यूटेड का मतलब इन नॉर्मल सेंस क्या होता है? डाइल्यूटेड का मतलब पतला कर दिया ना, मतलब थोड़ा उसका इफेक्ट घटा दिया। यस मैम। ठीक है, तो बेसिक में आप अज्यूम कर रहे हो कि आपको प्रॉफिट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना है। डाइल्यूटेड में यू आर आल्सो लुकिंग एट पीपल हु कैन बी योर फ्यूचर शेयर होल्डर्स। यस मैम। ओके, सो ये फर्क है बेसिक और ईपीएस में। मैम बेसिक में सिर्फ एक इंडिविजुअल को करते हैं मैम, और डाइल्यूटेड में मैम सबको, जिससे हमको इन फ्यूचर प्रॉफिट दिख रहा है मैम, उन सबको करते हैं। नहीं, प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट तो वही रहेगा। प्रॉफिट Yes, तो है ma'am. ना, पैट देखा हमने, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेगा। इसमें Yes, ma'am. डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे सिर्फ आप इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, यस मैम। पर डाइल्यूटेड में यू आर आल्सो टेकिंग कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। तो वो हो सकता है अभी वो कन्वर्ट नहीं हो, फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे, पर जब आप प्रॉफिट एट्रीब्यूट कर रहे हो, so you are also attributing it to convertible instruments. So यहाँ पे आपके number of instruments बढ़ रहे हैं, number of shares बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा? बेसिक बड़ा होगा कि डाइल्यूटेड बड़ा होगा? मैम डाइल्यूटेड बड़ा होगा। मैम बेसिक में तो मैम, क्योंकि मैम एक ही को दे रहे हैं मैम, डाइल्यूटेड में तो मैम अपना जो आगे देख रहे हैं जो शेयर होल्डर मैम इसलिए ना डाइल्यूटेड बड़ा होगा। पर डाइल्यूटेड में क्या बढ़ रहा है? न्यूमरेटर बढ़ रहा है या डिनोमिनेटर बढ़ रहा है? डिनोमिनेटर। मैम डिनोमिनेटर बढ़ रहा है।
डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रिजल्टेंट आपका बढ़ता है कि घटता है? मैम घटता है। घटता है ना, यस मैम। राइट? तो आपका नंबर घटेगा ना। यस यहाँ पे मैम, आप सिर्फ इक्विटी ले रहे हो तो एक्स ले रहे हो, यहाँ पे आप x+1 ले रहे हो, यस मैम, right? So diluted EPS will always be lesser than basic EPS, because you're also considering convertible instruments. You're not only considering equity shares, you are considering the convertible instruments. यस So मैम, the basic EPS is always higher or equal to the diluted EPS. EPS. Profit attributable to each share assuming an increase equity shares base due to conversion of convertible instrument. Okay, so यहाँ पे basic चीज ये है कि number of shares or number of incidents in diluted EPS are more than in basic EPS, and therefore your basic EPS is higher than your diluted EPS. Now dividend per share क्या होगा? डिविडेंड क्या है? पहली चीज डिविडेंड क्या है? व्हाट इज डिविडेंड? मैम जो इंटरेस्ट पे करना है शेयर्स में। शेयर्स पे इंटरेस्ट नहीं होता है, शेयर्स में मैम होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है। मैम मैम Yes, प्रॉफिट ma'am. पे इंटरेस्ट पे करते हैं ना। सो डिविडेंड इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही है, वेदर यू हैव मेड अ प्रॉफिट और यू हैव नॉट मेड अ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डेट तो हमको पे करना ही है, बट डिविडेंड तो कंपनी तभी पे करेगी ना जब उसको प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो एंड दिस इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कि कितना डिविडेंड पे करना है। तो जरूरी नहीं है कि कंपनी को अगर 40% प्रॉफिट हुआ है तो 40% दे विल डिस्ट्रीब्यूट टू देयर शेयर होल्डर। सो डिविडेंड पर शेयर इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी द कंपनी इज पेइंग टू ईच ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स from the profit. So it is represents the dividend available to each share. Now all the companies declare their dividend percentage or dividend per share. Per dividend per share is calculated at the face value of the share. और face value क्या है? Face value है जो कि कंपनी के बुक्स में शेयर का इशू प्राइस है। तो ज्यादातर फेस वैल्यू हमारी 10 या 100 रहती है। इट हैज नो सिग्निफिकेंस टू द मार्केट वैल्यू। डिविडेंड हैज नो सिग्निफिकेंस टू द मार्केट वैल्यू, इट हैज सिग्निफिकेंस टू द फेस वैल्यू। सो dividend is calculated as a percentage of face value of equity shares. Total dividend declared by equity shares outstanding or face value per share. So 100% dividend would mean, और अगर फेस वैल्यू अगर 10 है तो दैट मींस यू आर गेटिंग 10 रुपीस। तो आप देखते होंगे ना, कंपनीज डिक्लेयर दैट 50% डिविडेंड और 75% डिविडेंड। सो दैट इज नॉट एज अ परसेंटेज ऑफ द मार्केट वैल्यू, इट इज एज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अब जो आपका प्रॉफिट होता है, नाउ प्रॉफिट ऑब्वियसली हैज टू बी शेयर्ड विद द equity shareholders or it can be reinvested. Okay, तो ये reinvested भी जैसे हमने पहले देखा, they become a part of the retained earning. अगर आपको बैलेंस शीट याद हो तो ये रिटेन अर्निंग कहाँ जाती है, किस साइड में जाती है? एसेट में जाती है, लायबिलिटी में जाती है? मैम लायबिलिटी में। मैम लायबिलिटी में। लायबिलिटी में जाती है ना, और क्योंकि ये सोर्स ऑफ फंड है। लायबिलिटी की एक और डेफिनेशन हमने देखी है, लायबिलिटी मीन्स योर सोर्सेस ऑफ फंड। तो जो भी रिटेन अर्निंग है वो कंपनी वापस बिजनेस में ही लगाएगी। सो फॉर देम इट इज अ सोर्स ऑफ फंड, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज। ओनर्स इक्विटी भी आपका लायबिलिटी में होगा। जब कंपनी को प्रॉफिट होती है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स इन टू वेज। वन, इट इशूज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो अभी आप देखो, इसमें डेट होल्डर्स को तो पहले ही पैसा दे दिया गया है एज इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो पैसा बचा, जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, द कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट इट विद शेयर होल्डर्स, एंड बाकी जो पैसा बचेगा, इट विल बी द रिटेन अर्निंग व्हिच विल बी एडेड टू द liabilities of the company. So this will build up cash because this is a
source of fund for the company. So retained earning, build up cash and invest in capex. Capex means capital expenditure. तो कंपनी में दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. रेवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, जो आपकी करंट लायबिलिटीज है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो आप कुछ बड़ा खरीद रहे हो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. So the retained earning is also added to the liability of the company. Now डिविडेंड पे आउट रेशियो. तो ईपीएस हमने देखा, ईपीएस से हमने क्या किया, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है और वी हैव डिवाइडेड इट बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सो बाय दैट वी हैव गॉट अर्निंग पर शेयर. अब जितना भी अर्निंग पर शेयर हुआ, कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे द एंटायर थिंग टू द इन्वेस्टर, सो दे विल ओनली पे द डिसाइडेड डिविडेंड परसेंटेज. सो यू कैन आल्सो कैलकुलेट a ratio of dividend per share divided by EPS, or which is also known as the dividend payout ratio. मतलब कितनी अर्निंग हुई उसमें से कितना कंपनी ने डिविडेंड पे किया. So percentage of earning per share paid out as dividend. Now growing companies will have a lower dividend payout ratio. Any idea why? क्यों growing companies will have a lower dividend payout ratio? थोड़ा सा अकल लगाओ. मैम क्योंकि ग्रोइंग कंपनीज की शेयर्स जल्दी जल्दी लेता नहीं है कोई. नहीं. अच्छा, लेट मी पुट इट दिस वे, अगर वो डिविडेंड नहीं पे करेगी तो पैसा कहाँ जाएगा? अभी हमने देखा, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं पे करेगी तो पैसा जाएगा कहाँ? रिटेन्ड अर्निंग्स में. रिटेन अर्निंग में जाएगा. ग्रोइंग कंपनी है, इसका मतलब क्या है, कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है? हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके. करेक्ट. तो हमने देखा जितनी भी अर्निंग होती है, हमारी अर्निंग क्या है, प्रॉफिट है ना. अगर प्रॉफिट में से जितना हम डिविडेंड इन्वेस्टर को दे देंगे उतना कम हमारे पास रिटेन अर्निंग में बचेगा. तो अगर मुझे आगे एक्सपेंशन नहीं करना है, आई एम सेटिस्फाइड विद द वे द प्लेस माय कंपनी इज, आई विल पे मोर एंड मोर डिविडेंड टू द इन्वेस्टर. ओके, बट मेरी ग्रोइंग कंपनी है, दैट मींस आई विल नॉट पे ऑल द मनी, I will not share all the profit with the investors, but keep it with me for further growth. So growing company में आपका dividend payout ratio कम होता है because they want to have more retained earning for expansion. So I just told you this so that you get the perspective कि हम calculate क्यों करते हैं. So dividend payout ratio for growing company would be lesser. Basically it means कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है और उस हिसाब से कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया. नाउ डिविडेंड यील्ड. यील्ड क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यील्ड? वी हैव सीन इट इन इन्वेस्टमेंट. यील्ड का क्या मतलब है? मैम इट्स प्रोडक्शन. प्रोडक्शन. और इन्वेस्टमेंट में क्या मतलब होगा इसका? इन्वेस्टमेंट आप क्यों करते हो? मैम जिससे प्रॉफिट तो हमारा इन फ्यूचर. हाँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो. ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड बेसिकली टेल्स कि मुझे कितना डिविडेंड मिला है कंपेयर टू द प्राइस आई हैव इन्वेस्टेड. ठीक है, तो मैंने किस प्राइस पे शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, कौन से प्राइस पे मैं शेयर खरीद सकती हूँ लिस्टेड कंपनी का है तो? कैन आई बाय इट एट फेस वैल्यू? हाँ या ना? कंपनी का शेयर मैं फेस वैल्यू पे खरीद सकती हूँ आईपीओ के बाद? मोस्ट प्रॉब्ली नो, क्योंकि आईपीओ के बाद अगर मुझे खरीदना है शेयर, सो आई हैव टू गेट इट फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट. और सेकेंडरी मार्केट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? हेलो, तुम लोग क्या सब कुछ भूल गए हो? कांट एबल टू रिलेट. सेकेंडरी मार्केट क्या है? व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? मैम शेयर्स सेल एंड बाय किए जाते हैं. शेयर्स सेल होते हैं एंड मैम जो न्यू इश्यूज होते हैं मैम उसके लिए इन फ्यूचर वो होता है.
जो एग्जिस्टिंग प्राइमरी शेयर्स, मार्केट हुआ, न्यू इश्यू तो प्राइमरी मार्केट हुआ, सेकेंडरी यस मैम, मार्केट। न्यू एंड मैम सेकेंडरी मार्केट वो होते हैं मैम जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं मैम, वो सेल होते हैं, और मैम जो मतलब Correct. और लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं मैम, शेयर्स और लेते हैं। तो मुझे कैसे पता चलता है प्राइस शेयर मार्केट का? सेकेंडरी मार्केट में प्राइस कैसे पता चलता है? मैम सेकेंडरी मार्केट में प्राइस मैम जब वो प्राइमरी मार्केट से इश्यू होके सेकेंडरी में आएंगे मैम, प्राइमरी के थ्रू तो पता चलेगा। नहीं, प्राइमरी तो द कंपनी विल डिसाइड, सेकेंडरी मार्केट में द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर डिसाइड्स द शेयर प्राइस। ये हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि यस मैम, मैम जैसे सप्लाई डिमांड ज्यादा होगी तो मैम उसकी Yes, सप्लाई भी correct. ज्यादा होगी मैम, प्राइस इंक्रीज होगा। यस मैम, समझ गए। राइट। तो शेयर मार्केट का प्राइस हमेशा रोज चेंज होता है, यस मैम, डिमांड और तो सप्लाई अगर- पे डिपेंड right. करता है। सो डिविडेंड यील्ड अगर किसी इन्वेस्टर को कैलकुलेट करनी है, he has to take the price on which he has bought it. तो उसने किस प्राइस पे खरीदा होगा? मार्केट प्राइस पे खरीदा होगा, ठीक है। सो डिविडेंड यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय हाउ मच मनी he has got as dividend as compared to the amount he has invested. Okay? तो अगर जो हमने पहले एग्जांपल देखा था डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, वो तो मान लो 100% है तो 10 रुपीज उसको मिल गया, ठीक है, बट उसने शेयर खरीदा है 100 रुपीज में, तो उसका डिविडेंड यील्ड कितना हुआ? तो हमने देखा डिविडेंड पर शेयर 100% है क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, बट डिविडेंड यील्ड हम फेस वैल्यू पे नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और मार्केट वैल्यू 100 है, तो मतलब कस्टमर ने शेयर 100 रुपीज पे खरीदा और उसको 10 रुपए का डिविडेंड मिला, तो उसका डिविडेंड यील्ड कितना हुआ? तो डिविडेंड प्रॉफिट कितना हुआ? मैम 100 minus 90 सॉरी 100 minus 10। 100 क्यों माइनस करोगे उससे? मैम 10%। मैम 10% हुआ। 10% हुआ। अच्छा 10% उसने बेचा नहीं है, अच्छा उसने बेचा नहीं है, उसको मिला है, तो राइट 10% हुआ। तो दो आवर डिविडेंड टर्म पर शेयर इज 100%, बट क्योंकि शेयर का फेस वैल्यू इज डिफरेंट देन द मार्केट प्राइस, तो डिविडेंड यील्ड would be only 10%. So basically, dividend yield is the amount of dividend the customer has got as per the market price or on the price at which he has bought the share. So यहाँ पे it takes the current market price. Okay. So dividend yield is calculated by DPS or dividend per share by price at which share was purchased or price the current market price. Basically, it tells how much return a shareholder has earned or can earn through. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सेम एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया, मैंने 100 लिया था और 10 लिया था। तो शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा है 50 रुपीज में, डिविडेंड है 5 रुपीज, सो हिज डिविडेंड यील्ड इज 10%। सो अभी हमने कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज देखा ना, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यस मैम। ये तो हाँ, यस तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है? 50 है, अभी सेलिंग प्राइस नहीं है, वो अलग से उसको प्रॉफिट होगा। ओके, अगर ये सेल करेगा 60 रुपीज पे, अगर मान लो उसने 60 रुपीज पे सेल कर दिया, तब उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? मैम 5 100%। रुपये। हाँ मैम 100% होगा। मैम 0%। 100% के 0% भी नहीं होगा यार, कुछ तुम लोग गैस वर्क कर रहे हो यार, बैंकर्स हो तुम लोग, बैंकर्स हो, कहानीकार नहीं हो, कहानी नहीं बनानी है, कैलकुलेशन करना है। तो 5% तो उसको, कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? यस मैम। राइट, या तो 5% तो उसको डिविडेंड मिला, प्लस उसने ये शेयर बेच दिया, शेयर बेचने में उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 50 खरीदा था, 60 का बेचा, मैम 10। कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपीज। तो टोटल उसको हुआ 15 रुपए का प्रॉफिट। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे करेंगे परसेंटेज? मैम 15
ऑब्लिक 50 into 100 into 100. यस इनटू 100, ठीक है। तो ये उसका 30% प्रॉफिट हुआ, ओके यस राइट। तो ये जो लोग जो 100% ये जुबैर बोल रहे थे, भैया कहानियां मत बनाओ, दिस इज बैंकिंग, वी वर्क ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, नो स्टोरीज, ठीक है। तो टोटल कितना, उसमें टोटल कितना फायदा, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मतलब आपको कितना एडिशनल पैसा मिला ऑन द कॉस्ट प्राइस। हमने उस दिन किया था ना, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज योर प्रॉफिट। तो अभी आपको 5 रुपए का और बेनिफिट मिला है, तो यू विल ऐड दैट आल्सो इनटू इट एंड कैलकुलेट द। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया, जब हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वी लुक एट द टोटल प्रॉफिट वी मेड बाय बाइंग दैट शेयर। तो दो तरह के प्रॉफिट होंगे, एक तो मेरा प्रॉफिट होगा विद इंक्रीज इन द शेयर प्राइस, तो सिंपल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस वाला प्रॉफिट होगा। उसके अलावा मुझे जो डिविडेंड मिल रहा है वो भी तो मुझे ही मिल रहा है ना, सो दिस दैट हैज टू बी एडेड टू माय टोटल प्रॉफिट। तो दिस इज दो तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक डिविडेंड यील्ड है जो मुझे डिविडेंड मिला है, और दूसरा मेरा शेयर का प्राइस बढ़ गया है। तो दो टाइप से प्रॉफिट होता है। नाउ बुक वैल्यू, नाउ बुक वैल्यू क्या है, सिंपली बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द शेयर इन द प्राइस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो फेस वैल्यू है जो कि कंपनी ने शेयर इशू किया, बट आपने देखा कि ईयर ऑन एंड ईयर ऑन कंपनी क्या करती है, जो उसका रिटेन अर्निंग होता है, रिटेन अर्निंग जो होता है वो ऐड होते जाता है, शेयर होल्डर्स कैपिटल में रिटेन अर्निंग ऐड होता जाता है, राइट। तो क्या होगा, आपका शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स आपका सेम रहेगा, बट आपका शेयर होल्डर्स वैल्यू या नेटवर्थ बढ़ता जाएगा। बुक वैल्यू इज नथिंग बट नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। So book value is the value of the share as per the books of the company. It has nothing to do with the market value. Market value में demand and supply और other factors से आपका market value decide हो रहा है, but book value is decided by the retain earning or the profit of the company. So जितना ज्यादा उनका retain earning होगा उतना ज्यादा book value बढ़ते जाएगा. So it is dependent on the net worth. So ये हमने देखा था कि हम जो बुक वैल्यू निकालते हैं या नेट वर्थ निकालते हैं, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज विल गिव यू द नेट वर्थ, एंड नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू द बुक वैल्यू। तो ये मार्केट शेयर लेने से पहले भी बहुत बार यूज होता है, कंपेयरिंग द बुक वैल्यू विद द मार्केट प्राइस, राइट। सो इसको पीबी रेशियो कहते हैं, कि आपका शेयर कैसे प्राइस है डिपेंडिंग ऑन द बुक वैल्यू। अगर पीबी रेशियो बहुत हाई है, इसका मतलब है कि आपका शेयर ओवर वैल्यूड है, तो प्राइस ज्यादा है बुक वैल्यू कम है, तो आपका शेयर ओवर वैल्यूड है, इट्स प्रोबब्ली नॉट द राइट टाइम टू बाय दैट शेयर। बट अगर पीबी रेशियो कम है तो इट इज गुड, बिकॉज कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास कंपनी की नेटवर्थ ज्यादा है, और नेटवर्थ ज्यादा है तो और प्राइस कम है, दैट मीन्स इट्स अ गुड टाइम टू बाय। So price per share divided by book value will give you the PP. अब यहाँ पे एक और रेशियो दिया हुआ है, मार्केट कैप बाय नेटवर्थ, ओके। तो इसमें क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हैं? मार्केट कैप और नेटवर्थ में क्या क्या होगा? फॉर्मूला सेम है, तो दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप अपने नोटबुक पे लिखो तो शायद आपको समझ आए। प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, या तो आप मार्केट कैप और नेटवर्थ ले सकते हो। अब मार्केट वैल्यू मार्केट कैप आप कैसे कैलकुलेट करते हो? मार्केट कैपिटलाइजेशन, number of shares, outstanding shares into price per share. यस, सो प्राइस पर शेयर। और नेटवर्थ आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मैम जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस ट्रेजरी शेयर्स मैम सब मिला के जो होता है। यस करेक्ट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बुक वैल्यू उसी से आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या किया है आपने, एक मिनट आई जस्ट शो यू ऑन द व्हाइट बोर्ड।
तो हमारा so price per share can also be written as market capitalization by number of shares, ऐसे भी लिख सकते हो आप, करेक्ट है ना, क्योंकि प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। उसके बाद हम देख रहे हैं नेटवर्थ, राइट, या फिर बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू इज इक्वल टू net worth of the company, which is assets minus liabilities by number of shares, ठीक है। तो अगर आप अब इन दोनों को अगर प्राइस को आप न्यूमरेटर में लोगे और बुक वैल्यू को इसमें लोगे तो इट विल बी मार्केट, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ शेयर कैंसिल हो जाएगा। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन नेटवर्थ। नाउ मैं ये इसलिए सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा ना ब्रॉडर पिक्चर देखो, सिर्फ फॉर्मूले को याद करने का फायदा नहीं है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझो। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज है, वी आर लुकिंग एट द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इन कंपैरिजन टू द प्राइस ऑफ द शेयर। तो जैसे मैंने बताया कि मार्केट प्राइस जो है आपका, इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन हाउ द कंपनी इज वर्किंग, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच डिसाइड द प्राइस ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। तो अगर आपका इट कैन बी ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, तो आपको शेयर कब खरीदना चाहिए, जब शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? जब अंडर वैल्यूड हो। जब अंडर वैल्यूड है, वी ऑल नो दिस ना, ये तो बिजनेस सेंस है, यू बाय चीपर एंड सेल आउट हायर डियरर। तो इसीलिए हम प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर ये कम है, probably it's the right time to buy the share because the price of the share is lower in comparison with the book value. Okay. So अगर PB ratio कम है तो this is stock is undervalued and it's the right time to buy. And if it is high, then it is a good time to buy. However, PB में आप लोग हिस्टोरिक वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए सितंबर में कोई शेयर खरीदना है तो आपको 31 मार्च का वैल्यू लेना पड़ेगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम विद पीबी रेशियो ड्यू टू हिस्टोरिक रिकॉर्डिंग ऑफ लाइन आइटम्स। देन पीई, प्राइस टू अर्निंग। ये तो प्राइस के कंपैरिजन में, अर्निंग के कंपैरिजन में क्या प्राइस है। तो अगेन a lower PE ratio share is a better buy because it means that the share is has a lot of earning potential. So relevant measures for relative valuation in earnings. So PE, price to earning. So market price per share, previous in the profit in the previous year, previous 12 months. ओके, तो इसमें देखा है कि फास्ट ग्रोइंग कंपनी का पीई हाई होगा और पुरानी कंपनी का पीई कम होगा। मैम स्क्रीन नहीं अर्निंग ज्यादा होगा। स्क्रीन नहीं शो रही, सॉरी। So PE ratios market price per share divided by profit. So PE, so valuation ratio अगर आप देखो, they are looking at the price of the share in the market. तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा? ये वैल्यूएशन रेशियोज कौन देखेगा सबसे पहले? मैम जो शेयर्स ले रहे हैं कंपनी का। हाँ, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये देखेंगे, ये सारे रेशियो देखेंगे। So price to earning ratio relates to earning per common share to the market price at which stock trade, expressing the multiple that the stock market places on the firm's earning. Firm is valued high by the market, possibly because of growth expectation, or the firm may have very low earning per share. So it is used very often by the analyst to
see if the share should be invested in. So the most commonly used multiple for non-finance company. In basic term, it calculates the number of years it will take for the investor to get back the money back, provided there is no growth in earning. Trailing 12 months earning are used to calculate the ratio, क्योंकि earnings तो आपकी हर साल ही आएंगी. So in general, a high PE suggests that investors are expecting higher dividend growth in the future compared to companies with a lower PE. So PE ratio of a company compared to PE ratio of another company within the same industry to the market in general or against the company historic PE. तो ratios हमने देखा comparison के लिए use होते हैं. तो share price कुछ भी हो, but you are comparing it with regards to the earning that company is making. Obviously, PE can never be negative because price or earning कभी negative नहीं होगा. तो दो तरह से आप PE कैलकुलेट कर सकते हैं. ट्रेलिंग PE मतलब जो प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है या पिछले महीने का प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट, और फॉरवर्ड PE ये ऑब्वियसली प्रोजेक्शंस पे होगा. So uses last year earnings, uses next year earnings. Trailing PE preferred when forecasting earnings are not available. Preferred when trailing earnings are not reflective of future. So drawbacks. Drawbacks could be the company can have a zero, negative or very small earning, or it can be permanent or transitory earning. कभी हो सकता है जिस तरह से अभी पेंडेमिक आया है तो earnings of all the companies are affected, and it could be also management discretion for earnings, how they want to use that earnings. Now rational, because I told you, PE is a very important factors or very popular indicator for choosing the right kind of share. So EPS is a driver of value. So it shows the company's earning with respect to the profit of the company. It is widely used and it is related to stock return. हाँ, ये मुझे याद नहीं आ रहा था ना, enterprise value. EV is enterprise value. I just slipped my mind. Anyways, so I think it's the time. Okay, we'll end the session here today. Again, my request is please इसको पढ़ लीजिएगा. इसमें कुछ खास है नहीं, ज्यादातर mathematical calculation है. So please read it. In case you don't understand anything, we can discuss it on Monday. Okay, तो अभी आपके पास Saturday, Sunday है. Please utilize the weekend to revise it. Right? Okay, Any other questions or anything you have to ask? Hello, anything you have to ask? No one? Any questions? Okay. So we'll end the class here today and we will meet on Monday. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.